کیا ہے جی ہمارے ادارے کے سب سے کم سن طالب علم خزیمہ فیصل. جی بیٹا آپ سے سوال ہے. بیٹا آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کون ہیں؟ سلمان. اور بیٹا ہمارا دین کون سا ہے؟ اسلام. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ. اللہ کون ہے؟ خالق المالک. اللہ کتنے ہیں؟ ایک. زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں؟ اللہ. جو اللہ کو ایک نہ مانے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. شاباش. اچھا بیٹا قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. شاباش. اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں نمازیں کتنی ہیں؟ 5. شاباش. اچھا بیٹا بتائیں نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ویل ڈن. اچھا بیٹا ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویل ڈن میرا بیٹا. اچھا بیٹا ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. ویل ڈن میرا بیٹا. جی بیٹا کسی سے ملیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویل ڈن میرا بیٹا. اچھا بیٹا مجھے بتائیں السلام علیکم کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بیٹا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل ڈن. کھانا کس ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ دائیں ہاتھ. ویل ڈن. کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دائیں ہاتھ سے اپنے سامنے سے شروع کرتے ہیں. ویل ڈن میرا بیٹا. اچھا بیٹا روزے کس مہینے میں رکھتے ہیں؟ رمضان المبارک. ویل ڈن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن پاک. ویل ڈن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبی ہے؟ آخری نبی. ویل ڈن. اچھا بیٹا پانی کیسے پیتے ہیں؟ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دائیں ہاتھ سے. ویل ڈن. اچھا بیٹا جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ مانا. ویل ڈن. کسی سے کوئی چیز لیں تو کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. ویل ڈن. جزاک اللہ کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ. ویل ڈن. اچھا بیٹا آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جی بیٹا آسمانی. 4. ویل ڈن میرا بیٹا. آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ رات کو انجیل قرآن پاک. ویل ڈن. ہمیں ہمیشہ کیسی بات کرنی چاہیے؟ سچی. ویل ڈن. ہمیں کیسی دعا مانگنی چاہیے؟ اچھا انسان بننے کی. ویل ڈن میرا بیٹا. نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو. ویل ڈن میرا بیٹا. قرآن پاک کس زبان میں ہے؟ عربی زبان. ویل ڈن میرا بیٹا. اچھا بیٹا کل پیغمبر کتنے ہیں؟ 114. بیٹا 1. شاباش. 1,24,000. ویل ڈن میرا بیٹا. سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ویل ڈن. سب سے آخری نبی کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویل ڈن. اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5. ویل ڈن. اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں؟ کلمہ ایمان روزہ زکوٰۃ حج. ویل ڈن میرا بیٹا. فرشتے کس چیز سے بنے ہیں؟ نور. ویل ڈن. مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ 2. ویل ڈن. جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز. ویل ڈن میرا بیٹا. ویل ڈن. اچھا بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں آپ تعوذ سنائیں. تسمیہ. جی بیٹا تسمیہ سنائیں. ویل ڈن. پہلا کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ویل ڈن. دوسرا کلمہ سنائیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان
खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डन। खाना खाने के बाद की दुआ सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिमीन। वेल डन। खाना खाते बिस्मिल्लाह अगर भूल जाए तो क्या पढ़ते हैं? वेल डन। सोने की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, मेरा बेटा जागने की दुआ सुनाएं। बेटा इल्म की दुआ सुनाएं। वेल डन। सीढ़ियां चढ़ने की दुआ सुनाएं। वेल डन। सीढ़ियों से उतरने की दुआ सुनाएं। वेल डन। छींक लेने की दुआ सुनाएं। जी बेटा, छींक लें तो कौन सी दुआ पढ़ते हैं बताएं? वेल डन। अच्छा बेटा, छींक के जवाब में क्या कहते हैं? वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे बताएं अच्छी चीज को देख के क्या पढ़ते हैं? शाबाश। बुरी चीज को देख के क्या पढ़ते हैं? वेल डन। कोई चीज गुम हो जाए तो क्या पढ़ते हैं बेटा? अगर बेटा आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो क्या पढ़ते हैं? वेल डन। अच्छा बेटा, अगर गुम चीज मिल जाए तो फिर क्या पढ़ते हैं? जी बेटा, अगर गुम चीज मिल जाए तो फिर क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन। अच्छा बेटा, अल्लाह से सॉरी करते हुए क्या कहते हैं? वेल डन। किसी काम का इरादा करते हुए क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह। वेल डन। अच्छा बेटा, सबसे अच्छा जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और सबसे अच्छी दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेल डन। कोई बेटा हाल पूछे तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश, वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे बताएं कुरान पाक में कितने सुपारे हैं? 30। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? 7। कुरान पाक में कितने सजदे हैं? 15। कुरान पाक में कितने रुकू हैं? 5। वेल डन। अच्छा बेटा, कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 117। वेल डन मेरा बेटा। कुरान पाक में कितनी आयत हैं? 6036। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं मक्की सूरतें कितनी हैं? मक्की 86। जी, और मदनी कितनी हैं? मदनी 28। वेल डन मेरा बेटा। कलिमात कितने हैं कुरान पाक में? 76। वेल डन बेटा। हुरूफ कितने हैं कुरान पाक में? 3,30,652। वेल डन मेरा बेटा। कुरान पाक की पहली सूरत का क्या नाम है? वेल डन। सूरतुल फातिहा। वेल डन मेरा बेटा। कुरान पाक की आखिरी सूरत का क्या नाम है? सूरतुल नास। वेल डन। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरतुल बकरा। वेल डन। और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरतुल कौसर। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा इम्तिहान दिया। जी बेटा। मोमिन, सबसे पहले बेटा आप हमें ये बताएं कि किसी भी जुबान के बुनियादी हरूफ को क्या कहते हैं? वेल डन। जी बेटा, अरबी जुबान के हरूफ तहज्जी कितने हैं? 29। वेल डन मेरा बेटा। जी बेटा, हरूफ तहज्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट। जी बेटा, माइक थोड़ा ऊपर करना है मेरा बेटा। वेल डन। जी बेटा, इल्म तजवीद किसे कहते हैं? कुरान पाक पढ़ने के कौल ज़ाबित के लोगों को इल्म तजवीद कहते हैं। वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि इस इल्म का क्या फायदा है? इस इल्म से हम अरबी और लहजे में पढ़ सकते हैं। वेल डन बेटा, वेल डन। जी बेटा, इल्म तजवीद क्यों जरूरी है? قال الله تعالى إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل। इसकी ट्रांसलेशन सुनाए। बेशक अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं कि कुरान इसी तरह पढ़ा जाए जैसे उतारा गया। वेल डन, वेल डन। अच्छा बेटा, दांत कितने हैं? 12। वेल डन। दांतों को अरबी में क्या कहते हैं? अस्नान। वेल डन। ऊपर वाले दांतों को अरबी में क्या कहते हैं? स्नान। जी, वेल डन। और नीचे वाले दांतों को अरबी में क्या कहते हैं? स्नान। वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि एक दांत को अरबी में क्या कहते हैं? जिस। एक दांत को अरबी में क्या कहते हैं बेटा? माइक ऊपर करें मेरा बेटा। सीन। सिन। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा,
आप मुझे ये बताएं दाढ़ें कितनी हैं? 20. वेल डन। दाढ़ों को अरबी में क्या कहते हैं? अगास. वेल डन। ऊपर वाली दाढ़ों को अरबी में क्या कहते हैं? अगास. वेल डन। नीचे वाली दाढ़ों को अरबी में क्या कहते हैं? अगास. वेल डन। एक दाढ़ को अरबी में क्या कहते हैं? जिफ. वेल डन मेरा बेटा। जी बेटा, दोनों होंठों को अरबी में क्या कहते हैं? शफताइन. वेल डन। एक होंठ को अरबी में क्या कहते हैं? शफत. वेल डन। ऊपर वाले होंठ को अरबी में क्या कहते हैं? शफ्तुलिया. वेल डन मेरा बेटा। नीचे वाले होंठ को अरबी में क्या कहते हैं? शफ्त सुफला. वेल डन। अच्छा बेटा, होंठों के गोल करने को अरबी में क्या कहते हैं? तो के गोल करने को इमाम शफताइन कहते हैं. वेल डन बेटा। जी बेटा, होंठों के मिलाने को अरबी में क्या कहते हैं? बाकी शफताइन. वेल डन। गले को अरबी में क्या कहते हैं? हलक. वेल डन। हलक के कितने हिस्से हैं? 3. वेल डन बेटा। हलक के हिस्से कौन कौन से हैं? अक्सालिक, मुस्तलिक, अदनालिक. वेल डन बेटा। जुबान को अरबी में क्या कहते हैं? इसान. शाबाश, वेल डन बेटा। लिसान के कितने हिस्से हैं? 6. वेल डन बेटा। जी बेटा, लिसान के हिस्से कौन कौन से हैं? रासुल लिसान, तर्फे लिसान, वेल डन। जनाहा हाफा लिसान, अक्सर लिसान, शेदे लिसान. वेल डन बेटा। अब आप हमें ये बताएं कि रासुल लिसान किसे कहते हैं? बनकर सुनाए के सारे लफ्ज़ रासुल लिसान कहते हैं. जी बेटा, तुर्फे लिसान किसे कहते हैं? बनकर बांधकर तो भी सारे लफ्ज़ तर्फे लिसान कहते हैं. अदना हफ़ा किसे कहते हैं? बनकर वाई के सारे लफ्ज़ अदनाफा कहते हैं. और बेटा, हाफा लिसान किसे कहते हैं? बनकर तवानुल वाजिब के सारे से हाफा लिसान कहते हैं. अच्छा बेटा, अक्सा लिसान किसे कहते हैं? मन की जान को अक्सर लिसान कहते हैं. और बेटा, शजरे लिसान किसे कहते हैं? मन के दरमियान वाले हिस्से को शेदे लिसान कहते हैं. वेल डन बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं लिसान कितनी है? 2. वेल डन बेटा। लिसान कौन कौन सी हैं? लिसानों से गिर, लिसानों को गिर. अच्छा बेटा, आप मुझे सनाया के बारे में बताएं। सामने वाले ऊपर नीचे 4 दांत सुनाया है. सामने वाले ऊपर 2 दांत सुनाया हुआ है. सामने वाले नीचे 2 दांत सुनाया सुफला है. वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं कि रुबाई के बारे में बताएं। सुनाए के साथ है ऊपर नीचे 4 दांत रुबाई है. वेल डन। बायुलिया. जी बेटा। सुनाए के साथ है ऊपर नीचे ऊपर ऊपर पर 2 वेल डन। 2 दो दांत। रुबाई वेल डन। उलिया है. वेल डन मेरा बेटा। सुफला. सुनाए के साथ है नीचे 2 दांत वेल डन। रुबाई सुफला है. शाबाश मेरा बेटा। जी बेटा, आप मुझे अनियाब के बारे में बताएं। रुबाई के साथ है ऊपर नीचे 4 दांत अनियाब है. अनियाब उलिया. रुबाई के साथ है ऊपर 2 दांत अनियाब उलिया है. अनियाब सुफला. रुबाई के साथ है नीचे 2 दांत अनियाब सुफला है. वेल डन, शाबाश मेरा बेटा। जी बेटा, आप मुझे अब आप ज़वाहिद के बारे में बताएं। अनियाब के साथ है ऊपर नीचे 4 धारे रुबाई के. वेल डन, शाबाश। रुबाई कुलिया. अनियाब के साथ है ऊपर 2 धारे रुबाई उलिया है. वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। अनियाब के साथ है नीचे 2 धारे रुबाई सुफला है. वेल डन, शाबाश मेरा बेटा। बेटा, अब आप ऐसा करें कि आप हमें तवाहीन के बारे में बताएं। रुबाई के साथ है ऊपर नीचे 12 दाने फाइन है. फाइन उलिया. रुबाई के साथ है ऊपर 3 6 दाने फाइन उलिया है. शाबाश मेरा बेटा, वेल डन। रुबाई के साथ है नीचे 3 6 दाने फाइन सुफला है. वेल डन बेटा, शाबाश मेरा बेटा। अब बेटा, आप हमें नवाजिश के बारे में बताएं। रुबाई के साथ है ऊपर नीचे 4 दाने नवाजी है. नवाजी रूबिया. रुबाई के साथ है ऊपर 2 दाने नवाजी
बेटा। बल के साथ हमारे नीचे दो दाने नवारी सुफला है। वेल डन मेरा बेटा, शाबाश। अच्छा बेटा, अब आप ऐसा करें कि आप हमें मेरा बेटा दूध पीने की दुआ सुनाएं। बेटा घर से निकलने की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे घर में दाखिल होने की दुआ सुनाएं। वेल डन, शाबाश। अच्छा बेटा, कोई गिरे तो क्या पढ़ते हैं? वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताएं, शरह सदर की दुआ सुनाएं। वेल डन बेटा, वेल डन। दुनिया और आखिरत में भलाई की दुआ सुनाएं। वेल डन बेटा। कपड़े पहनने की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे गाड़ी में बैठने की दुआ सुनाएं। वेल डन, वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे बख्शिश की दुआ सुनाएं। अच्छा बेटा, कामयाबी की दुआ सुनाएं। अच्छा बेटा, आसानी की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, रिज़्क की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, वालिदैन के लिए दुआ सुनाएं। वेल डन, शाबाश मेरा बेटा। रहमत की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, दर्द की दुआ सुनाएं। वेल डन। अच्छा बेटा, आंखों की दुआ सुनाएं। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा, दुआए कुनूत सुनाएं। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन, शाबाश। वेल डन मेरा बेटा। जी हुसनैन, आप ऐसा करें कि आप हमें ये बताएं कि लहन किसे कहते हैं? गलती को अरबी में लहन कहते हैं। लहन की दो इकसाम है, लहने जली, लहने खफी। लहने जली बड़ी गलती को कहते हैं, ऐसी गलती जो कुरान पाक के मतन में तब्दीली करे, ये हराम है। शाबाश। इसकी चार इकसाम है। किसी हर्फ का बदल देना, जैसे अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ना। नंबर 2, किसी हर्फ का बढ़ा देना, जैसे बिस्मिल्लाह को बिस्मिल्लाह कर देना। वेल डन। और नंबर 3, किसी हर्फ का कम कर देना, वेल डन, जैसे वलमिलत को वलमिलत कर देना। वेल डन। नंबर 4, हरकत को सकनात में तब्दीली करना, वेल डन, जैसे अलहम्दु को अलहम्दु करना। वेल डन। और लहने खफी किसे कहते हैं बेटा? लहने खफी छोटी गलती को कहते हैं। मेरा बेटा, इसका क्या मतलब है? ऐसी गलती जो कुरान पाक के मतलब में तब्दीली ना करे पर अदायगी में तब्दीली करे, ये बेटा जी, वेल डन। इसकी कोई मिसाल बेटा? जैसे रब्बाना को रब्बाना करना। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। बेटा आप ऐसा करें, हमें नून के बारे में बताएं। आपने जो हरफ लिखे पूछा, ये हरफ नून है। इसका हैवी पॉइंट नंबर 10 है। लाम के मुखरी से थोड़ा सा आगे तक फिर कान और ऊपर वाले दांतों के नुकतों से एक हरफ आता है, हरफ नून। इस हरफ को हरफ तस्बिया कहते हैं। इसमें फातिहा में ज़्यादा 5 है। इसमें फातिहा में ज़्यादा के पहले सेट में से हर की सिर्फ पाई जाती है। इसमें फातिहा में ज़्यादा के दूसरे सेट में से तसुद की सिर्फ पाई जाती है। इसमें फातिहा में ज़्यादा के तीसरे सेट में से इत्तिफाक की सिर्फ पाई जाती है। इसमें फातिहा में ज़्यादा के चौथे सेट में से इन्फिताह की सिर्फ पाई जाती है। इसमें फातिहा में
होगा। शाबाश। जैसे मीम खोला, शाबाश। नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो इकराब होगा। शाबाश। जैसे लिम्बादी, वेल डन। नून साकिन या तनवीन के बाद या मालूम में से कोई रफा आ जाए तो इकराब होगा। शाबाश। अगर या नून में से कोई आ जाए तो जी जी इकराब मालूम ना होगा। जी जी जैसे मयशा, जी। अगर लम में से कोई हर्फ आ जाए तो इकराब भी लगना होगा। जैसे यरबी, नून साकिन या तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से कोई हर्फ ना आए, हर्फ बावी आए, और यर मालूम में से कोई हर्फ ना आए तो इकराब हकीकी होगा। जैसे तुम भी। शाबाश। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि ये मखारिज के मवाक़े कितने हैं? 5। वेल डन मेरा बेटा। मखारिज के मवाक़े कौन कौन से हैं? जो फिदान, हलक, लिसान, शफतैन, खेशूम। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि मखरिज किसे कहते हैं? हरूफ के निकलने की जमा को। निकलने की जगह। वेल डन मेरा बेटा। बेटा आप ऐसा करें कि मुझे मखारिज बताएं कितने हैं? मखारिज 29 हरूफ के कुल कितने मखारिज हैं? 17। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा आप ऐसा करें कि मुझे ये 17 मखारिज सुनाएं। पहला मखरज, वेल डन। जो फिदान इससे 3 हरूफ पदा होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। वेल डन। इन हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ जोफिया कहते हैं, हरूफ हवाइया कहते हैं, हरूफ मद्दा कहते हैं। वेल डन मेरा बेटा। जी बेटा दूसरा मखरज सुनाएं। अक्सर इससे 2 हरूफ पदा होते हैं, हमजा, हा। वेल डन मेरा बेटा। और तीसरा मखरज? मुस्तलक इससे 2 हरूफ पदा होते हैं, आइन, हा। वेल डन। अच्छा बेटा इसके बाद चौथा मखरज? अदनालक इससे 2 हरूफ पदा होते हैं, वाइन, खा। वेल डन। बेटा ये दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो तीनों मखारिज हैं, इन तीनों मखारिज के 6 हरूफ को क्या कहते हैं? हर्फ हल्किया। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। जी बेटा पांचवा मखरज सुनाएं। महरमा, अक्सर लिसान और हाथ के गले की जाने वाले हिस्से से एक हर्फ का काफ है, कॉफ। वेल डन। अच्छा बेटा छठा मखरज सुनाएं। अक्सर लिसान और हाथ के मुंह की जाने वाले हिस्से से एक हर्फ का काफ है, कैफ। वेल डन मेरा बेटा। आप मुझे ये बताएं कि पांचवा और जो छठा ये दोनों मखारिज के जो 2 हरूफ हैं, इन दोनों हरूफ को क्या कहते हैं? हर्फ लहाकिया। वेल डन बेटा, वेल डन। शाबाश। अच्छा बेटा अब आप मुझे सातवां मखरज सुनाएं। शज्जर लिसान में मुकाबले तालुक से 3 हर्फ पदा होते हैं, जीम, सीन, या। वेल डन मेरा बेटा। बेटा इन तीनों हरूफ को क्या कहते हैं? हर्फ शजरिया। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा आप मुझे अब आठवां मखरज सुनाएं। हाफा लिसान ताइनुल्लाह नवाजिदुल्लाह के किनारों से एक हर्फ पदा होता है, और वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। बेटा इस हर्फ को क्या कहते हैं? हर्फ हाफिया। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा आप ऐसा करें कि मुझे नामा मखरज सुनाएं। अब्दुल्ला फमात तौफीर संसाई दुनिया और परवादातों के उसरों से एक हर्फ पदा होता है, फिर लाम। वेल डन मेरा बेटा। बेटा अब आप मुझे 10वां मखरज सुनाएं। लाम के मखरज से थोड़ा लागत तरफे से और परवादातों के उसरों से एक हर्फ पदा होता है, फिर नून। वेल डन मेरा बेटा। बेटा अब आप मुझे 11वां मखरज सुनाएं। नून के मखरज से थोड़ा लागत तरफे से और परवादातों के उसरों से एक हर्फ पदा होता है, फिर वा। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि ये नामा, 10वां और 11वां इन तीनों मखारिज के जो ये 3 हरूफ हैं, इन हरूफ को क्या कहते हैं? और फिर तरफिया। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा अब आप मुझे ये बताएं कि 12वें मखरज के बारे में बताएं। रक्से सनाला की जड़ से वेल डन। 3 हरूफ पदा होते हैं, ता, दाल, कॉफ। वेल डन मेरा बेटा। बेटा इन तीनों हरूफ को क्या कहते हैं? और फिर निकमैया। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा अब आप मुझे ऐसा करें कि 13वां मखरज सुनाएं। रक्से सनावलिया के किनारों से 3 हर्फ पदा होते हैं, फा, वाल, वा। वेल डन मेरा बेटा। बेटा इन 3 हरूफ को क्या कहते हैं? और फिर लिस्कुया। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा आप मुझे 14वां मखरज सुनाएं। सनावलिया मातुल सासना और रक्से से 3 हर्फ पदा होते हैं, सीन, ज़ा, स्वाद। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। बेटा इन तीनों हरूफ को क्या कहते हैं? और फिर सफीरिया। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा अब आप ऐसा करें कि मुझे 15वां मखरज सुनाएं। सनावलिया के किनारे शब्द सुफरा के तड़ी वाले हिस्से से एक हर्फ पदा होता है, फा। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। शाबाश। अच्छा बेटा अब आप मुझे 16वां मखरज सुनाएं।
शफ़तैन है, इससे 3 हर्फ अदा बा मीम वा मीम इत्फाक शफ़तैन से वाव इत्फाक शफ़तैन से। वेल डन बेटा, वेल डन बेटा। आप मुझे ये बताएं कि जो 15वां मखरज है और जो 16वां मखरज है, इन दोनों मखारिज के ये जो 4 हरूफ है, इन हरूफ को क्या कहते हैं? हर्फ शफ़िया। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा, आप मुझे 17वां मखरज सुनाएं। हैशु है, इससे गुना दा का, इससे दो हर्फ अदा का मीम मुशद्दद नून मुशद्दद। बेटा इन दोनों हरूफ को क्या कहते हैं? हर्फ गुना। वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। जी बेटा, आप ऐसा करें, हमें बताएं कि सिफात किसे कहते हैं? सिफात जिनकी जमा है, सिफ का मतलब है खूबी, सिफात का मतलब है खूबियां। वेल डन मेरा बेटा। बेटा आप मुझे ये बताएं कि सिफात की कितनी किस्में हैं? सिफात की दो किस्में, सिफात लाजिमा और सिफात आर्जा। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा ये बताएं सिफात लाजिमा की कितनी इकसाम है? सिफात लाजिमा की 2 इकसाम है। कौन कौन सी? सिफात लाजिमा मुज़ादा, सिफात लाजिमा गैर मुज़ादा। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं सिफात लाजिमा मुतज़ादा के कितने सेट हैं? 5 सेट है। वेल डन मेरा बेटा। सिफात लाजिमा मुतज़ादा के पहले सेट के बारे में बताएं। पहला सेट हम्स और जोहर का है, हम्स का मतलब है बस्ती, जोहर का मतलब है बुलंदी। जी बेटा आप मुझे ये बताएं कि हम्स में कौन से हरूफ हैं? फासा वो शक्ल सकल। वेल डन मेरा बेटा। और जहर में कौन से हरूफ हैं? फासा वो शक्ल सकल के अलावा बाकी हरूफ में जहर। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अब आप मुझे सिफात लाजिमा मुतज़ादा के दूसरे सेट के बारे में बताएं। दूसरा सेट शिद्दत तवस्सुत और इत्तबा का है। वेल डन मेरा बेटा। शिद्दत का बेटा क्या मतलब है? शिद्दत का मतलब है सख्ती, और तवस्सुत का? तवस्सुत का मतलब है दरमियानी, और रिख्वत का? रिक्वत का मतलब है नरमी। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि शिद्दत के अंदर कौन से हरूफ हैं? शिद्दत की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? अजीज हुकुम। जी जी शाबाश। वेल डन बेटा, वेल डन। और बेटा तवस्सुत की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? अजीज हुकुम बेटा तवस्सुत। वेल डन मेरा बेटा। और बेटा लिखत की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? बाकी तमाम हरूफ में कौन सी सिफ्त पाई जाती है? वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि सिफात लाज़िमा मुतज़ादा का तीसरा सेट कौन सा है? तीसरा सेट इस्तिला और इस्तिफाल का है। इस्तिला का क्या मतलब है? इस्तिला का मतलब है बात का बोलना। और इस्तिफाल का क्या मतलब है? फाल का मतलब है बात का नीचे रहना। वेल डन। अच्छा बेटा इस्तिला की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? वेल डन बेटा, वेल डन। और इस्तिफाल की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? किसके अलावा के रूप में इस्तेमाल की सिफ्त पाई जाती है। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं सिफात लाज़िमा मुतज़ादा का चौथा सेट कौन सा है? चौथा सेट इत्तबाक और इत्तिबाक का है। वेल डन। इत्तबाक का बेटा क्या मतलब है? इत्तिबाक का मतलब है बात का ताल्लुक डालना। वेल डन। और इंफिताह का क्या मतलब है? बात का ताल्लुक डालना। अच्छा बेटा इत्तबाक की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? वेल डन बेटा। और मेरा बेटा मुझे ये बताएं इंफिताह की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? के अलावा के रूप में इंफिताह की सिफ्त पाई जाती है। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा सिफात लाज़िमा मुतज़ादा का पांचवा सेट कौन सा है? पांचवा सेट अल्लाह और रहमान का है। वेल डन बेटा, वेल डन। आप मुझे ये बताएं अज़लात का क्या मतलब है? अल्लाह का मतलब है फिज़िकल निकलना। वेल डन। और मेरा बेटा अस्मात का क्या मतलब है? अस्मात का मतलब है जंगल निकलना। वेल डन बेटा। आप मुझे ये बताएं अज़लात की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? वेल डन बेटा। और मेरा बेटा अस्मात की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा वो कितनी है? 7। अच्छा बेटा उसके बारे में बताएं कि पहली सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा कौन सी है? पहली सिफ्त कलकला की है। वेल डन। कलकला का क्या मतलब है? कलकला का मतलब है हरकत या हलाकत। वेल डन, वेल डन। बेटा ये कलकला की सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? में पाई जाती है। वेल डन मेरा बेटा। अब आप मुझे ये बताएं कि सिफात लाज़िमा गैर मुतज़ादा की दूसरी सिफ्त कौन सी है? दूसरी सिफ्त सफीर की है। वेल डन बेटा। सफीर का क्या मतलब है?
शाबाश। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि सिफीर की सिफ्त वो कौन से हरूफ में पाई जाती है? शाबाश मेरा बेटा। अब मेरा बेटा मुझे सिफाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की तीसरी सिफ्त के बारे में बताएं। तीसरी सिफ्त फशी है। वेल डन। तो फशी का क्या मतलब है? फैला। अच्छा बेटा ये सिफ्त कितने हरूफ में पाई जाती है? एक हर्फ। वेल डन। वो कौन सा हर्फ है? हर्फ शीन। वेल डन बेटा, शाबाश मेरा बेटा। अब आप मेरा बेटा मुझे ये बताएं कि सिफाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की चौथी जो सिफ्त है उसके बारे में बताएं। चौथी सिफ्त लीन की है। लीन। जी बेटा, लीन का क्या मतलब है? लीन का मतलब है नरमी। वेल डन बेटा। ये सिफ्त कौन से हरूफ में पाई जाती है? लीन की सिफ्त वाला में पाई जाती है। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि सिफाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की पांचवी सिफ्त कौन सी है? पांचवी सिफ्त इस्तितालत की है। वेल डन बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा इस्तितालत का क्या मतलब है? लंबा करना। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि ये इस्तितालत की सिफ्त कितने हरूफ में पाई जाती है? एक हर्फ में पाई जाती है। वेल डन बेटा। वो कौन सा हर्फ है? वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। अब बेटा मुझे आप ये बताएं कि सिफाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की छठी सिफ्त कौन सी है? छठी सिफ्त इन्हिराफ की है। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अब मुझे ये बताएं इन्हिराफ का क्या मतलब है? इन्हिराफ का मतलब माइल होना, लौटना। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। अब आप मुझे ये बताएं कि इन्हिराफ की सिफ्त कितने हरूफ में पाई जाती है? लाम और राफ में। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। जब हम लोग लाम अदा करते हैं जुबान लाम के बाद इसकी तरफ जाती है। जब हम लाम अदा करते हैं इस बार लाम के बाद। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही बेटा। अब मेरा बेटा आप मुझे सिफाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा की सातवीं सिफ्त के बारे में बताएं। सातवीं सिफ्त तकरीर की है। तकरीर का क्या मतलब है? तकरीर का मतलब कबाना। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा मुझे ये बताएं कि तकरीर की सिफ्त कितने हरूफ में पाई जाती है? एक हर्फ में पाई जाती है। वेल डन बेटा। वो एक हरफ कौन सा है? वेल डन मेरा बेटा, वेल डन, शाबाश। मुझे मेरे बेटे ये बताएं कि नून साकिन और तनवीन के कितने कायदे हैं? 4। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। बेटा वो 4 कायदे कौन कौन से हैं? नंबर नून साकिन के बाद हकीम से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन का इजहार होगा। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। जैसे कि अलांता। शाबाश, बिल्कुल सही बेटा। दूसरा नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन का इकलाब होगा। जैसे कि मिन बादी को मिन बादी पढ़ना। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। अच्छा बेटा अब मुझे तीसरा बताएं। नून साकिन के बाद या में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन का इदगाम होगा। वेल डन। और मेरा बेटा इदगाम माल गुन्ना कहाँ पे होगा? इदगाम माल गुन्ना। जी बेटा। नून साकिन के बाद या में से शाबाश, हरफ आ जाए तो नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना। बिल्कुल सही बेटा, वेल डन मेरा बेटा। अब मुझे बताएं इदगाम बिला गुन्ना कहाँ पे होगा? नून साकिन के बाद लर में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना होगा। वेल डन बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही, वेल डन मेरा बेटा। अब आप मुझे ये बताएं कि नून साकिन या तनवीन के जो कायदे आपने बताया कि 4 हैं, इसका चौथा कायदा कौन सा है? नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की भी लाए, बा भी लाए, या नून भी लाए, बाकी हुरूफ आए तो इक्फा हकीकी होगा। वेल डन बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही। बेटा अब आप मुझे ये बताएं कि नून साकिन और तनवीन में कितने फर्क हैं? 3। बेटा कौन कौन से हैं? नून साकिन लिखा जाता है जबकि तनवीन अलामती तौर में आता है। साकिन हमेशा पढ़ा जाता है जबकि तनवीन कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं पढ़ा जाता। बिल्कुल सही। नून साकिन हमेशा कलिमा के दरमियान या आखिर में आता है। बिल्कुल सही। और नून तनवीन हमेशा कलिमा के कहाँ पे आता है? आखिर में आता है। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही, वेल डन, शाबाश। जी जनाब आप हमें बताएं कि मीम साकिन के कितने हाल हैं? 3। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। बेटा कौन कौन से हैं? मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो मीम साकिन का इदगाम माल गुन्ना होगा। जैसे शाबाश मेरा बेटा। और दूसरा हाल? मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम साकिन का इक्फा शफवी होगा। जैसे
well done मेरा बेटा, well done मेरा बेटा। नंबर 3 नीम साकिन के बाद बा भी ना नीम भी ना बाकी हरूफ आए तो नीम साकिन का इजहार होगा जैसे लकुम दीनुकुम। well done मेरा बेटा, well done। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं मुफख्खम किसे कहते हैं? मुफख्खम पढ़ना मुर्गा। well done मेरा बेटा। और मुरक्कब पढ़ना बरीक। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं रा मुफख्खम की कितनी हालतें हैं? 12। well done मेरा बेटा। जी बेटा आप मुझे बताएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 राम मस्तूब, नंबर 2 राम मजरूम, नंबर 3 राम शदल मस्तूब, नंबर 4 राम शदल मजरूम, नंबर 5 राम well done, नंबर 5 रा साकिन मा कबर मस्तूब, well done, well done। नंबर 6 रा साकिन मा कबर मस्तूब, well done बेटा, नंबर 7 रा साकिन मा कबर साकिन मा रा साकिन मा कबर साकिन मा कबर मफ्तू well done मेरा बेटा, शाबाश। जी बेटा नंबर 8 नंबर 8 रा साकिन मा कबर साकिन मा कबर मजरूम, well done बेटा, well done। नंबर 9 रा साकिन मा कबर कसरा मा बाद हरूफे मुस्तारिया जैसे मेओसार well done बेटा, well done, शाबाश। बेटी बेटा 10 नंबर राय मजमूमा जिस पर वक़फ़ राउंड किया जाए जैसे मोतासिर। well done बेटा, well done मेरा बेटा, well done। अच्छा बेटा अब आप मुझे मेरा बेटा ये बताएं कि इसकी 11 नंबर बताएं। रा साकिन मा कबर कसरा आजी जैसे इरजई। well done बेटा, well done। अच्छा बेटा अब आप मुझे बताएं इसकी नंबर 12। एक कलमा की इब्तिदा रा साकिन से हो, पिछले कलमा की इंतहा कसरा हकीकी से हो जैसे रब्बिरजिऊन। well done बेटा, well done, शाबाश। अच्छा बेटा मुझे आप ये बताएं राय मुरक्कब की कितनी हालतें? 7। well done बेटा। वो भी बताएं कौन सी है? नंबर 1 नंबर 1 राम मकतूब, नंबर 2 नंबर 2 राम शदल मकसूब, well done। नंबर 3 नंबर 3 रा साकिन मा कबर मकसूब, नंबर 4 रा साकिन मा कबर मकसूब, well done। नंबर 5 रा साकिन मा कबर well done। नंबर जैसे बेटा जैसे खैर। well done मेरा बेटा। जी नंबर 6 राय मकसूर जिस पर वक़फ़ राउंड किया जाए जैसे परवज। well done मेरा बेटा, well done। जी बेटा अब आप मुझे ये बताएं कि इसकी नंबर 7 राय की मादा जैसे मजरीहा को मजरेहा करना। well done मेरा बेटा, well done, शाबाश। well done ज़रा well done मेरी बेटी। बताएं कि कुरान पाक की तिलावत के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। well done बेटा। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत, बेटा इस तरीके में क्या करते हैं? तस्बीह दोनों पढ़ते हैं। शाबाश मेरा बेटा। जी बेटा नंबर 2 कौन सा तरीका है? इब्तिदाई तिलावत दरमियाने सूरत, well done मेरा बेटा। इस तरीके में हम क्या करते हैं? ताउस पढ़ते हैं। well done मेरा बेटा, बिल्कुल सही। बेटा नंबर 3 कौन सा तरीका है? दरमियाने तिलावत, इब्तिदाई सूरत, well done मेरा बेटा। बेटा इस तरीके में हम क्या करते हैं? तस्बीह। शाबाश। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि अलिफ और हमजा में कितने फर्क हैं? 6। well done। बेटा आप मुझे मेरा बेटा सुनाए नंबर 1 हमजा मुतहर्रिक होता है जबकि अलिफ कार मुतहर्रिक होता है। well done। नंबर 2 हमजा झटके से पढ़ा जाता है जबकि अलिफ नरमी से पढ़ा जाता है। well done। नंबर 3 हमजा कभी पढ़ा जाता है कभी नहीं, अलिफ हमेशा पढ़ा जाता है। well done। नंबर 4 हमजा अपनी शक्ल बदल लेता है जबकि अलिफ अपनी शक्ल नहीं बदलता। well done। नंबर 5 हमजा कहीं भी आ सकता है जबकि अलिफ दरमियान और आखिर में आता है। well done। नंबर 6 हमजा से पहले कोई भी हरकत आ सकती है जबकि अलिफ से पहले ज़बर आता है। well done बेटा, well done, शाबाश। जी बेटा मेरा बेटा हमें लफ्ज़ अल्लाह के नाम के बारे में बताएं कि लफ्ज़ अल्लाह का नाम कब मुफख्खम पढ़ा जाता है?
अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बान पेश हो तो अल्लाह का नाम मुफख्खम पढ़ेंगे, जैसे अल्लाह। वेल डन मेरा बेटा। जी बेटा अब आप मुझे ये बताएं, लफ्ज़ अल्लाह का नाम मुरक्कब कब पढ़ा जाता है? अगर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह का नाम मुरक्कब पढ़ेंगे, जैसे बिस्मिल्लाही। वेल डन मेरा बेटा। अब मुझे लामे अल के बारे में बताएं बेटा, ये कब पढ़ा जाता है और कब नहीं पढ़ा जाता? अगर लामे के बाद इबवी हर जगह वखफ अकीमा में से कोई हरफ आ जाए तो लामे अल पढ़ा जाएगा। वेल डन। जैसे अल कमरू। वेल डन। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, लामे अल कब नहीं पढ़ा जाता? अगर लम्हे के बाद इबवी हर जगह वखफ कीमा में से कोई हरफ ना आए तो लम्हे नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अशम्सु। वेल डन बेटा, वेल डन। बेटा मुझे लामे मुतहर्रिक के बारे में बताएं। मुतहर्रिक लाम को मुरक्कब पढ़ेंगे। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही। अच्छा बेटा आप मुझे ऐसा करें कि आप मुझे ये बताएं कि हुरूफे कमरी कौन से हैं? इबवी हर जगह वखफ अकीमा वाले कमरी हुरूफ हैं। और बेटा हुरूफे शम्सी कौन से हैं? इबवी हर जगह वखफ अकीमा के अलावा बाकी हुरूफ शम्सी हुरूफ हैं। वेल डन बेटा, वेल डन। बेटा आप मुझे ये बताएं, इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम का मतलब है एक हरफ का दूसरे हरफ में मिल जाना। बेटा जो हरफ मिलता है उसे क्या कहते हैं? मुदगम। और जिसमें मिलता है उसे क्या कहते हैं? मुलफ़ी। वेल डन। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, इदगाम की कितनी इकसाम है? 3। अच्छा बेटा आप मुझे तीनों इकसाम के नाम बताएं। नंबर 1 जी। इदगाम मुस्तईन। नंबर 2। इदगाम मुतजानिसैन। नंबर 3। इदगाम मुतक़ारिबैन। शाबाश। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं, इदगाम मिसलैन किसे कहते हैं? इदगाम मिसलैन का मतलब है एक जैसे दो हरूफ का इदगाम। अच्छा बेटा मुझे बताएं, इदगाम मिसलैन की कितनी किस्में हैं? वेल डन। 2। वेल डन मेरा बेटा। बेटा कौन कौन सी हैं? जी बेटा। ताम। वेल डन। इदगाम मिसलैन ताम और इदगाम मिसलैन नाक़िस। वेल डन। बेटा इदगाम मिसलैन ताम की कोई मिसाल दें। इदगाम मिसलैन ताम जैसे इज़हबा। वेल डन। और इदगाम मिसलैन नाक़िस की कोई मिसाल दें। इदगाम मिसलैन नाक़िस नहीं होगा। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। अच्छा बेटा अब आप मुझे ये बताएं, इदगाम मुतजानिसैन किसे कहते हैं? इदगाम मुतजानिसैन का मतलब है एक मखरज के दो मुख्तलिफ हरूफ का इदगाम। वेल डन मेरा बेटा। अब आप मुझे ये बताएं, इदगाम मुतजानिसैन की कितनी इकसाम है? इदगाम मुतजानिसैन की 2 इकसाम। वेल डन मेरा बेटा। बेटा आप मुझे बताएं, इदगाम मुतजानिसैन की 2 इकसाम कौन कौन सी हैं? इदगाम मुतजानिसैन ताम। वेल डन। इदगाम मुतजानिसैन नाक़िस। वेल डन मेरा बेटा। अब आप मुझे इदगाम मुतजानिसैन ताम की कोई मिसाल दें। इदगाम मुतजानिसैन ताम का मतलब है जी बेटा इसकी मिसाल दें। जैसे किताब। वेल डन। और इदगाम मुतजानिसैन नाक़िस की मिसाल दें। इदगाम मुतजानिसैन नाक़िस जैसे अहत्तु। वेल डन मेरा बेटा। जी बेटा मुझे आप ये बताएं, इदगाम मुतक़ारिबैन किसे कहते हैं? इदगाम मुतक़ारिबैन का मतलब है एक जैसे दो मुख्तलिफ
मुख्तलिफ हरूफ का दाम। वेल डन बेटा, बिल्कुल सही। आप मुझे ये बताएं इदगाम मुतकारिबैन की कितनी इकसाम है? इदगाम मुतकारिबैन की 2 इकसाम हैं। वेल डन बेटा, मुझे ये बताएं इदगाम मुतकारिबैन की 2 इकसाम कौन कौन सी हैं? इदगाम मुतकारिबैन ताम। वेल डन। इदगाम मुतकारिबैन नाकिस। जी बेटा, मुझे आप ये बताएं कि इदगाम मुतकारिबैन ताम की कोई मिसाल दें। इदगाम मुतकारिबैन ताम जी, जैसे जैसे अल्लाह। वेल डन। और इदगाम मुतकारिबैन नाकिस की कोई मिसाल दें, जैसे जैसे वेल डन। इदगाम मुतकारिबैन नाकिस की मिसाल दें, जैसे मैं ऐसा हूँ। वेल डन बेटा, वेल डन। शाबाश अब्दुल्ला कमर, वेल डन बेटा। बेटा आप क्या करें, आप हमें वक्फ के बारे में बताएं कि वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ का क्या मतलब है? वक्फ का मतलब है ठहरना या रुकना। शाबाश मेरा बेटा। आप मुझे ये बताएं वक्फ की कितनी इकसाम है? वक्फ के 3 तरीके हैं। वेल डन मेरा बेटा। आप मुझे बताएं पहला कौन सा है? वक्फ बिल इस्कान। बेटा वक्फ बिल इस्कान का क्या मतलब है? वक्फ 7 सुकून के। वेल डन मेरा बेटा। बेटा ये कौन कौन सी हरकत में होता है? ये हर हरकत पर होता है। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन, बिल्कुल सही। बेटा आप मुझे ये बताएं कि वक्फ का दूसरा तरीका कौन सा है? वेल डन बेटा। वक्फ बिल रॉन्ग का क्या मतलब है? वक्फ 7 हरकत के तीसरे हिस्से को जाहिर करना। वेल डन मेरा बेटा। बेटा ये मुझे बताएं ये कौन कौन सी हरकत में होता है? ये वेल डन। वक्फ बिल रॉन्ग कौन कौन सी हरकत में होता है? ज़ेर और जी, पेश। वेल डन, बिल्कुल सही मेरा बेटा। बेटा इसकी कोई मिसाल भी दें, जैसे वेल डन, वेल, शाबाश। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि वक्फ का तीसरा तरीका बताएं आप हमें। वक्फ बिल इश्माम। बेटा इसका क्या मतलब है? वक्फ बिल इश्माम का मतलब है वक्फ 7 घंटों की गुलाई को जाहिर करना। वेल डन मेरा बेटा। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी हरकत में होता है? पेश। वेल डन बेटा, वेल डन मेरी बेटी, शाबाश। जी बेटा, जी बेटा आप मुझे ऐसा करें कि नूने कुतनी के बारे में बताएं। कुतनी किसे कहते हैं? कुतनी का मेरा बेटा क्या मतलब है? जैसे जख्मों को मिलाती है उसमें नून मकसूर लफ्जों को मिलाती है। शाबाश मेरा बेटा। बेटा नूनी कुतनी कहाँ पे लगाते हैं? अगर तन्वीन के बाद हमजा वस्ली आ जाए तो तन्वीन की एक हरकत कम करके हमजा वस्ली की जगह नून मकसूर लगा देते हैं, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहु समद। वेल डन मेरा बेटा, वेल डन। जी बेटा आप मुझे बताएं, शाबाश, कि बेटा मद किसे कहते हैं? जी बेटा लंबा करना, तूल देना, खींचना। शाबाश। आप मुझे बताएं मद की कितनी किस्में हैं? इधर ही बेटा। जी जी 2 इसमें है। शाबाश। कौन कौन सी? इल्ला नहीं है बेटा। जी जी। अच्छा बेटा आप मुझे ये बताएं कि मद्दे असली कहाँ पे होती है? हरूफ मद्दा के बाद हमजा और सुकून ना आए तो मद्दे असली होती है। और मेरा बेटा मुझे ये बताएं मद्दे फरई कहाँ पे होती है? हरूफ मद्दा के बाद हमजा और सुकून आए तो मद्दे फराई होती है। अच्छा बेटा मद्दे फरई के कितने सबब हैं? मद्दे फराई के 2 सबब हैं। बेटा कौन कौन से? और सुकून। शाबाश। अच्छा बेटा हमजा के लिहाज से मद्दे फरई की कितनी किस्में हैं? हमजा के लिहाज से मद्दे फराई की 2 इकसाम है। कौन कौन सी? मद्दे फराई मुत्तसिल, मद्दे फराई मुनफसिल। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं मद्दे फरई मुत्तसिल कहाँ पे होती है? मद्दे फराई मुत्तसिल वो होती है हरूफ मद्दा के बाद एक कलमा में हमजा आ जाए तो मद्दे
well done میرا بیٹا. مد فرعی منفصل کہاں ہوتی ہے بیٹا؟ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ میں حمزہ آ جائے تو مد فرعی منفصل ہوتی ہے، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ. شاباش میرا بیٹا شاباش. اچھا بیٹا سکون کے لحاظ سے مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ سکون کے لحاظ سے مد فرعی کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مد فرعی لازم، مد فرعی عارض. اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ مد فرعی لازم کہاں پہ ہوتی ہے؟ مد فرعی لازم وہ ہوتی ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے تو مد فرعی لازم ہوتی ہے. مد فرعی لازم کی بیٹا کتنی قسمیں ہیں؟ مد فرعی لازم کی 5 قسمیں ہیں. اچھا بیٹا مد فرعی لازم کی پہلی قسم بتائیں. مد فرعی لازم حرف خفض. یہ کہاں ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد حروف مدہ کے بعد ایک حرف میں سکون اصلی آ جائے تو مد فرعی لازم حرف خفض ہوتی ہے. جیسے دال. شاباش. مد فرعی لازم کی دوسری قسم کے بارے میں بتائیں. حروف مدہ کے بعد ایک کلمہ میں حمزہ آ جائے، ایک کلمہ میں سکون اصلی آ جائے تو مد فرعی لازم کلمی مخفف ہوگی. شاباش. جیسے آن آنا. well done میرا بیٹا. مد فرعی لازم کی تیسری قسم کے بارے میں بتائیں. جی بیٹا. حروف مدہ کے بعد ایک حرف میں تشدید آ جائے تو مد فرعی لازم حرف مسکر ہوتی ہے. well done. جیسے الف لام میم. شاباش. اچھا بیٹا مد فرعی لازم کی چوتھی قسم کے بارے میں بتائیں. حروف مدہ کے بعد ایک کلمہ میں تشدید آ جائے تو مد فرعی لازم حرفی مد فرعی لازم. مد شاباش. فرعی لازم کلمی مسکر ہوگی. شاباش. جیسے حاجہ. شاباش میرا بیٹا. مد فرعی لازم کی پانچویں قسم کے بارے میں بتائیں. حروف لین کے بعد ایک حرف میں سکون اصلی آ جائے تو مد فرعی لازم حرف مخفف لین ہوتی ہے، جیسے عین. شاباش میرا بیٹا. اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں مد فرعی عارض جو آپ نے پہلے بتائی کہ 2 قسمیں ہیں سکون کے لحاظ سے، مد فرعی لازم اور مد فرعی عارض. مد فرعی عارض کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد فرعی عارض کی 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ مد فرعی عارض وقفی، مد فرعی عارض وقفی. مد فرعی عارض وقفی کہاں پہ ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد وقف میں سکون عارضی آ جائے تو مد فرعی عارض ہوتی ہے. مد فرعی عارض وقفی ہوتی ہے. شاباش. یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جیسے عظیم. شاباش میرا بیٹا. مد فرعی عارض کی دوسری قسم سنائیں. حروف لین کے بعد وقف میں سکون عارضی آ جائے تو مد فرعی عارض وقفی لین ہوتی ہے. شاباش. جیسے خوف. شاباش بیٹا. اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں مدوں کی کتنی قسم کی مقداریں ہوتی ہیں؟ مقداریں 3 ہوتی ہیں. کون کون سی میرا بیٹا؟ نمبر 1 قصر. قصر کا کیا مطلب ہے؟ قصر کا مطلب ہے چھوٹی. اس کی کتنی مقدار ہے؟ قصر کی مقدار 1 الف یا 2 سات ہے. شاباش. اچھا دوسری مقدار کون سی ہے؟ قصر مد اصلی پہ ہوتی ہے. اچھا بیٹا قصر کہاں پہ ہوتی ہے؟ قصر
मध्य असली पे होती है। शाबाश मेरा बेटा। मद की दूसरी मिकदार के बारे में बताएं, कौन सी है? तवस्सुत का क्या मतलब है? का मतलब है दरमियानी। शाबाश। इसकी कितनी मिकदार है? तो इसमें 4 हरकत हैं। और ये कहाँ पे होती है? मध्य फराई मुत्तसिल, मध्य फराई मुनफसिल, मध्य फराई लाजिम, मध्य फराई लाजिम, अरफी, मुखफ़फ़, लीन। वेल डन। और मद की जो तीसरी मिकदार है वो कौन सी है? तूल। शाबाश। इसका क्या मतलब है? तूल का मतलब है लंबी। इसकी कितनी मिकदार है? तूल की मिकदार 3 अरबियां 6 हरकत है। शाबाश। अच्छा बेटा ये कहाँ पे होती है? मध्य फराई लाजिम, अरफी, मुखफ़फ़, मध्य फराई लाजिम, कलमी मुखफ़फ़, मध्य फराई लाजिम, अरफी मुसक्कर, मध्य फराई लाजिम, कलमी मुसक्कर। वेल डन मेरा बेटा। अच्छा बेटा मध्य फराई आरिज में बेटा कौन सी मिकदारें होती हैं? इस पे तीनों मिकदारें जाएंगी। शाबाश। मध्य फराई आरिज वक्फी में ज्यादा बेहतर कौन सी मिकदार है? सबसे बेहतर तूल, शाबाश। उससे कम बेहतर तवस्सुत, उससे कम बेहतर कसर। वेल डन। और मध्य फराई आरिज वक्फी लीन में कौन सी मिकदार सबसे बेहतर है? सबसे ज्यादा बेहतर कौन सी है? इस पे तीनों मिकदारें जायज हैं। सबसे बेहतर